ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਈ ਐਮ ਪਿਊਸ਼ ਜੰਦਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਸੇजेस। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵਰਸਸ ਥਰੂ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। The dog was by a stick because it kept ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਪਾਰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੇਜਰਸ ਕੌਜ਼ਿੰਗ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਤੱਕ ਬਾय ਸਟਿਕ ਬਿਕॉज ਇਟ ਕੈਪਟ ਕੌਜ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਈ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੋ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦ ਡੌਗ ਵਾਜ਼ ਬੀਟਨ ਟੂ ਡੈਥ ਬਾय ਅ ਸਟਿਕ ਬਿਕॉज ਇਟ ਕੈਪਟ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਟਰਬਲ ਟੂ ਦ ਵਿਲੇਜਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਟਨ ਟੂ ਡੈਥ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਡੈਥ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਸਟਿਕ ਨਾਲ, ਬਿਕॉज ਇਟ ਕੈਪਟ ਕੌਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੌਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਿਊਟਰ ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਲਈ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਕੈਪਟ ਕੌਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟ ਵਰਬ, ਕੈਪਟ ਕੀਪ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ, ਕੀਪ ਔਨ, ਕੀਪ ਫਰੋਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟ ਔਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟ ਔਨ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਟਰਬਲ ਟੂ ਦ ਵਿਲੇਜਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਰੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਬਾय ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਰੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵਿਦ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵਿਦ ਆਏਗਾ, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि
ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂਅਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਡੂਅਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦ ਡੌਗ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਬਲੈਂਕ ਦ ਵਿਲੇਜਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਬਲੈਂਕ ਦ ਵਿਲੇਜਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੂਅਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ? ਡੂਅਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਕ ਹੈ, ਸਟਿਕ ਡੂਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਟਿਕ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਦ ਦਾ। ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਦ ਦਾ। ਫॉर एग्जांपल I painted the door blank a brush। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈ ਪੇਂਟਡ ਦਾ ਡੋਰ ਬਲੈਂਕ ਆ ਬ੍ਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੂਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡੂਅਰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਈ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਦ ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਈ ਪੇਂਟਡ ਦਾ ਡੋਰ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਬ੍ਰਸ਼, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨਰ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੈਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਓਪਨਡ ਦ ਬੋਟਲ ਬਾय हिटिंग इट। आई ओपन द बॉक्स, कुछ भी कह लो, ठीक है। आई डिड समथिंग बाय हिटिंग इट, ठीक है। वो खुल नहीं रही सी, मतलब मैं उन्होंने हिट किया तो खुल गई। तो मतलब जो हिटिंग इट है ना, यही चीज़ जी लिखी हुई है एक मैनर है, एक मैनर है, तरीका। तो तरीके ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने लिए ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ यूज़ करते हैं? बाय ਦਾ। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਵੈਂਟ ਬਾय ट्रेन, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾय ट्रेन, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਇਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਦ ਨੂੰ ਟੂ ਨਾਲ, ਟੂ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਨਾਲ, ਇਨ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਰੇ ਵਾਈ ਦਾ ਵਿਲੇਜਰਸ ਕੱਟ ਕੇ, ठीक है, उरे मैं लिखदा आ गन, ठीक है। तो ये सही होगा गलत होगा? वाई गन लिखो या स्टिक, जो स्टिक लिखा है आप स्टिक लिख लो, स्टिक। हम तुम की उरे वाई यूज़ कर लोगे? नहीं यूज़ कर सकते, तो अपन उरे की यूज़ करना पड़ेगा उरे। समझ आ गया? क्योंकि इस टूल ਨੂੰ यूज़ करता गया। ਹੁਣ देखो मैं पूरा सेंटेंस लिखता, ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखदा, जिमें मैं कहा द enemies were killed blank
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਐਨਮੀਜ਼ ਵਰ ਕਿਲਡ ਬਲੈਂਕ ਐਨ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਾਈਫਲ ਬਲੈਂਕ ਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਲੈਂਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੂਅਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਡੂਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ ਬਲੈਂਕ ਅ ਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੀ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ ਬਲੈਂਕ ਅ ਪੈਨ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਏ, ਵਿਦ, ਇਨ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਾਏ ਤੇ ਵਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਜਨਰਲੀ ਬੱਚੇ ਬਾਏ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਟੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ STH, ਇਹ STH ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, STH ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜੋਗੇ STH ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਥਿੰਗ, और SMB का मतलब होता है somebody। ठीक है जी, ये शॉर्ट फॉर्म्स ने, एब्रीवेशंस ने, ग्रामरियंस यूज करते हैं, आप यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मोटिव थोड़ा ये समझाना है। ठीक है, और ये समथिंग लिखा है, थोड़ा समझ आ गया। चलो हुन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही रोट समथिंग ब्लैंक इंक। हुन देखो ये लिखा हुआ है सेंटेंस, इनू आप समझते हैं। ਜਿਹੜਾ इंक है ठीक है, कि यह एक टूल है, आप क्या आप विद यूज करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट ਲਈ, किसी डिवाइस ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ टूल कह सकते हैं। ठीक है, तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ इंक है एक डिवाइस है, कि यह एक इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, इंक इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना, तो अगर इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इन्नी गल समझ आ रही है कि आप और की नहीं यूज़ कर सकते, विद नहीं यूज़ कर सकते, विद गलत हो गया। अच्छा, कि यह एक मीनस है, नहीं, कि यह डूअर है, नहीं, डूअर भी नहीं है, मीनस भी नहीं है। ठीक है, कि मैं वाया इंक कह सकता, नहीं कह सकता, तो यदा मतलब उरे बाय भी नहीं आएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है, या तो इन आएगा या क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, अच्छा अगर नन ऑफ दीज जगह कुछ और फॉर लिखा होंगे फिर तो अपन समझ आ जाता, फॉर तो आ ही नहीं सकता, फिर आप तुक्के नाल की लगा देंगे, इन लगा देंगे। लेकिन उरे नन ऑफ दीज भी लिखा है, तो मतलब इन छड़ के कुछ और भी आ सकता है। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना कि इस सेंटेंस दे विच की आएगा, इन ही आएगा। ठीक है, की आएगा, इन। हुण इन क्यों आएगा, आप इनू जस्टिफाई करना है। ठीक है, अपना मोटिव सिर्फ इंक जानना नहीं, अपना मोटिव ये जानना है कि इन क्यों आया, समझना। पता है क्यों, कि जिहड़ा इंक है ना, ये अल्टीमेटली की एक मटीरियल है। की है मटीरियल की हुंदा है, एक इहो जिहा सबसटांस जिन्हों आप यूज़ करके कुछ काम करते हैं। ठीक है, जिवें आप मतलब आप कंध बनानी है, घर बनाना है। ठीक है, घर दे विच ब्रिक यूज़ हो रही है, सीमेंट यूज़ हो रहा है, वुड यूज़ हो रहा है, ग्लास यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैटल यूज़ हो रहा है, आयरन यूज़ हो रहा है, जो भी वो सबसटांसिस यूज़ हो रहे हैं वो सारे मटीरियल ने। ठीक है, तो सेम वे जिहड़ा इंक है ये भी की एक मटीरियल है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, मटीरियल का मतलब मटीरियल नाउन आप कह सकते हैं। ठीक है, मटीरियल नाउन है, क्योंकि किसी वस्तु का नाम है ना, किसी चीज़ का नाम है, तो नाउन है। तो नाउन जिहड़े हुंदे ने दो तरीके दे हुंदे ने। ठीक है, एक हुंदा काउंटेबल नाउन, एक हुंदा अनकाउंटेबल नाउन। तुसीं दस कहोगे सर आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर रिलेशन दे विच ही सारे सेंटेंसिस ने। ठीक है, तो जिहड़ा मटीरियल हुंदा ना, जिवें मैं कहता कॉमन नाउन। ठीक है, एक मैं कहता मटीरियल नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन दे विच कहता मैं बॉय, मटीरियल नाउन दे विच मैं कहता ग्लास, या फिर ग्लास कहता, या फिर मैं सीमेंट कहता। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ ਬॉय। ठीक है, मैं ऐ भी लिख सकता 2 बॉयज़, लिख सकता ना, बिल्कुल लिख सकता। ठीक है, अच्छा कि सीमेंट में काउंट कर सकते हो, तुम सीमेंट खरीदन जाने हो, तुम की कहते सीमेंट खरीदन जाने हो। ठीक है, या फिर मिल्क लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, कि लिख लो, मिल्क लिख लो, या फिर गोल्ड लिख लो। ठीक है, तुम इनू खरीदन जाने हो, कि तुम इनू काउंट करके खरीदते हो, नहीं, तुम या तो इनू मैजर करते हो या ਇਹਦਾ वेट करते हो। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना नंबर नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੇ ਨਾउनਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਾउन नहीं हो सकते, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾउनਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਇੰਨੀ ਗੱਲ समझ आ गई। बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾउन ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 1, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ 골ਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ।
कदे भी तुसीं ये नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। कदे भी तुसीं ये नहीं लिख सकते 5 मिल्क्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 kg मिल्क लिख लो क्योंकि वो वेट कर रहे हो ਉਹਦਾ, ठीक है। गल समझ आ गई। चलो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏ ਔਰ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਔਰ ਐਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਮਾਰਕਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫੋਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਹਾਊਸ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਆ ਫੋਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ 1 ਫੋਨ। समझ आ गई जी गल, ठीक। तो ये करके जो 1 है नंबर है, क्वांटिटी नहीं हैगी, तो करके आप मटीरियल लाउन दे नाल आप 1 का यूज़ नहीं कर सकते। 1 का मतलब आप आर्टिकल का यूज़ भी नहीं कर सकते। समझ आ गया? तो मतलब कुछ भी याद करने वाला नहीं हैगा। तुसी किते रट्टा लाई जाओ ना, क्रैम करी जाओ कि यार ये चीज़ एवें है, ये चीज़ एवें, रट्टा नहीं लगाना। तुसी कितना रट्टा ला लो, कितना कुछ याद कर लोगे यार, ठीक है। इन्ना सिलेबस है, इंग्लिश तो अलावा होर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ने, जीके याद करने वाली बहुत है। जिथे याद करना तुसी उत्थे याद करो, लेकिन उरे याद नहीं करना, इनू तुसी अपनी लाइफ दे नाल रिलेट करो, ठीक है। तुसी वधिया तरीके नाल इनू समझ सकते हो। चलो जो अपन इन्नी गल समझ आ गई कि मटीरियल नाउन दे नाल आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है जी, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होंदा है। चलो जो अपन इन्नी गल समझ आ गई, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही रैप्ड a box white paper। आप एक सेंटेंस लिखा, ही रैप्ड अ बॉक्स ब्लैंक वाइट पेपर, तो यही प्रैपोजिशंस ने, ठीक है। तो उरे की आएगा, की आ जाएगा उरे इन, इन्ना को थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर तुसी उरे भी नहीं फड़ पा रहे, ठीक है, तो कित्थे गलती है सोच के देखो। तो ये गलती पता कित्थे है कि आप इंग्लिश के नाल जमी भी फैमिलीयर नहीं है, जमा नहीं फैमिलीयर, आप कदे पढ़ी भी नहीं है, कदे भी नहीं पढ़ी, आप इंग्लिश के विच कदे रीड भी नहीं किया, तो उत्थे कमी है सर। तो थोड़ा रीडिंग करने की जरूरत है। अगर थोड़ा तो ये भी सॉल्व नहीं हो रहा तो थोड़ा फिर लैक्चर समझने भी बहुत डिफिकल्ट लगणगे, ठीक है। तो इस करके मैं थोड़ा सुजैसट करूँगा, अगर किसी बच्चे को ये सेंटेंस भी समझ नहीं आ रहा कि ये इन क्यों आया या अंदरों फीलिंग नहीं आ रही इन वाली, तो यह मतलब बहुत ज़्यादा कमी है, आप बहुत पिछे हाँ, ठीक है, पूरे कंपटीशन तो अपन रीडिंग करने की जरूरत है। तो रीडिंग करने की हैबिट पाओ थोड़ी जी, ठीक है, कुछ भी पढ़ लो। चलो अपन समझ आ गया इन आएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा दसना चाहना कि आप आर्टिकल यूज़ किया ना, पेपर लिए यूज़ कर लिया। पेपर तो आप पढ़िया मटीरियल नाउन है, पेपर भी मटीरियल है, मटीरियल का नाम है, ठीक है। तो इस करके जो पेपर है ये लिए आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। समझ आ गई गल, ठीक। जिमें मैं थोड़ा कहा कि आ प्लास्टिक, ठीक है, मैं जिमें थोड़ा कहता हाँ प्लास्टिक या फिर पेपर लिख लो, ठीक है, पेपर ही लिख लिया, ठीक है। मैं लिख लिया पेपर, पेपर है ना अनकाउंटेबल है, मटीरियल है, तो ये करके आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तुम कहोगे आप कुछ कर रहे हैं क्योंकि तुम देखो वो यही कुछ दिता हुआ है, पेंसिल दिता हुआ, पेंसिल दिता है, तो उत्थे थोड़ा एक सेकंड तो पहले तुम खुद ही सॉल्व कर लोगे, अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं तो फिर मेरे पीछे पीछे आंसर मैं बोलूँगा, तुम पीछे पीछे बोलोगे, वो याद करना पऊगा। मेरा वो तरीका नहीं है ना, वो तरीका वधिया है, ठीक है। जनरल इंग्लिश एवं ही पढ़ाई जाती है, पहले 5 बार मैं बोलूँगा, 5 बार पीछे बच्चे को बुलाऊँगा, मैनू भी याद हो गया, थोनू भी याद हो गया, गल खत्म। लेकिन वो वधिया तरीका नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ध्यान नाल समझो, जो मैं लिखा आ पेपर तो गलत हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल तुम ये नाउन के लिए यूज़ कर लिया, नाउन अनकाउंटेबल है सर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा अ शीट ऑफ पेपर, तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यार तुम आर्टिकल यूज़ किया ना, ये शीट लिए यूज़ किया, पेपर लिए नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो तुम शीट लिए यूज़ किया, शीट तो काउंटेबल है, ठीक है, शीट की है काउंटेबल और सैपरेबल है, ठीक है। तो ये इसीलिए यह जो फ्रेज है ये सही है, तो इनू आप काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, अल्टीमेटली पूरे आप काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। लेकिन अगर तुम कल पेपर की गल करोगे अनकाउंटेबल नाउन है। इन्नी गल समझ आ गई जी। जो अपन इन्नी गल समझ आ गई, पता की एक्चुअल जी शीट है ना, हुण ये शीट पेपर की भी हो सकती है, ये शीट मैटल की भी हो सकती है, ये शीट आयरन की भी हो सकती है, ये शीट गोल्ड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की शीट हो सकती है, वो मैटर नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली जो मेन आइडिया अपना हो रहा है वो शीट है, तो आर्टिकल यूज़ हो रहा है शीट लिए यूज़ हो रहा है, ना कि पेपर लिए। समझ आ गया? तो करके हम आप इन्होंने कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप की गल कर रहे हैं, शीट की गल कर रहे हैं। समझ आ गई? ठीक। चलो हुण उरे आ जाओ, जिवें मैं तुहानूं लिखा और सेंटेंस लिखा, ठीक है। जिहड़ा इंक लिखा है ना, बेसिकली जिहड़ा इंक है ना, ये भी की एक मटीरियल है, की एक मटीरियल है। इस करके आप इहदे लई आपां की यूज़ करांगे इन। समझ आ गई गल? क्यों? क्योंकि आप किसी भी मटीरियल नूं इंट्रोड्यूस करने के लिए आप की यूज़ करते हैं इन। इन्नी गल क्लीयर हो गई जी? ठीक। अगे चलते हैं। ही रोट समथिंग ब्लैंक अ पीस ऑफ चॉक। जो मैं कह रहा अ पीस ऑफ चॉक, तो पीस ऑफ चॉक काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है।
क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली उरे गल की कर रहे हैं पीस की। अब चाहे वो पीस चौक का, चाहे वो क्ले का, चाहे वो किसी भी चीज़ है, मैटर नहीं करता। अब अल्टीमेटली पीस की गल कर रहे हैं, तो जो पीस है अल्टीमेटली अपने आप के काउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो इसका मतलब की है ये उरे मटीरियल नहीं बल्कि टूल हो गया। टूल का मतलब इंस्ट्रूमेंट हो गया। अगर इंस्ट्रूमेंट हो गया तो आप की यूज कर लेंगे विद। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹੀ ਰੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੈਂਕ ਚੌਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆ ਪੀਸ ਆਫ ਚੌਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਸਿਰਫ ਚੌਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੌਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਾਮੂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ठीक है, मैं ऑफिस 'ਚ बैठा, ठीक है, मैं एक एरोगेंट टाइप का बंदा, ठीक है, बॉस हाँ, तो मैं आवाज़ लगाती रामू कित्थे मर गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि रामू कित्थे मर गया नहीं यार, अल्टीमेटली आई एम कॉलिंग हिम, ठीक है, मैं उन्होंने बुला रहा, मैंने हेल्प चाहिए है, मैं कोई काम करवाना है। तो आप कहने कुछ होता मीनिंग कुछ और निकलता है। लैंग्वेज एवं ही काम करती है। तो जो आप कह रहे हैं चौक, तो यह मतलब क्ले हो सकता है जिसों बनता है, क्ले हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही गल? तो यह मतलब यह मटीरियल हो गया। अगर ये मटीरियल है तो आप की यूज़ कर लेंगे। ये सारे एग्जाम से क्वेश्चन ने, तो मैं बहुत डैप्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੂਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਚਲਾਇਆ, ठीक है, 42 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है, ਉਹमें ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਹੀ ਰੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਬਲੈਂਕ ਆ ਪੈਨਸਿਲ। ਆ ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿਦ, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दीज क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो तुसी खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो, ही रोट समथिंग, ठीक है। मैं क्यों कह रहा खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यार ये चीज़ें एग्जाम के आ चुकी हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, इस तो इलावा बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो चक्के हुए हैं, ठीक है, मैं कोई आप नहीं बनाए, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बनाया, ठीक है। ये भी मैं दसूंगा कितों लेता। कहना मतलब की है कि हुण आपां मैं तुहानूं इन्ना करवाता, ठीक है। हुण तुसीं ਉਹਨੂੰ ਹੀ एनालिसिस करके ਉਹਦੇ अपने एनालिटिक्स स्किल यूज़ करके तुसीं ਉਹੀ कंसैप्ट नਵੇਂ वर्ड्स से अप्लाई करके देखो कि थोड़े तो हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि यार जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम के सेम आएगा। पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन सेम ही आते हैं, सिमिलर तरीके से आते हैं। मैं सारे कवर करवाते जिन्ने भी पॉसीबल थे, मैनूं नहीं लगता इस तो बाद कुछ आऊगा। अगर आऊगा तो तुसीं आराम नाल वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुसीं ध्यान नाल देखो, ही रोट समथिंग ब्लैंक पेंसिल, ठीक है। उरे आ पेंसिल लिखा सी, आ पेंसिल का मतलब की है कि एक इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जो तुसी पेंसिल कह रहे हो ना तो वही मीनिंग है चौक लिखा सी। उरे तुसी पेंसिल की बनती है लैड की, लैड कह सकते हो, ग्रेफाइट कह सकते हो, कार्बन ग्रेफाइट जो भी है ना, जो सिक्का होंगे। तो व्हेन यू आर सेइंग पेंसिल यू आर रेफरिंग टू द लेड, व्हेन यू आर सेइंग योर पेंसिल हेयर यू आर रेफरिंग टू लेड और ग्रेफाइट व्हाटएवर, ठीक है। तो तुमने इन्नी गल समझनी है। तो मतलब उरे मटीरियल हो गया, तो उरे की आएगा इन CDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट जो अपन ऑफलाइन क्लासा चलती हैं सारे बच्चे गलत करके आए, ठीक है। तो वही चीज़ है ना कि यह नवी चीज़ आ गई, ठीक है। तो हुण यह क्वेश्चन मैं बनाया, कितों बनाया, ये मैं नॉवल तो लेता एक्चुअली, ठीक है। कोई मैं नॉवल पढ़ रहा सीगा, ठीक है। तो वो नॉवल के क्वेश्चन सीगा, तो ये भी आ सकता है यार, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये भी आ सकता है। तो उरे जो तुसीं पेन कह रहे हो तो पेन के नाल तुसीं ध्यान नाल देखोगे आप कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया। अगर उरे कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया तो यह मतलब मैं पेन बोल के किनू रैफर कर रहे हैं, उरे इंक नू रैफर कर रहे हैं। तो यह मतलब उरे भी की आएगा इन। ध्यान रखना, देखो लैंग्वेज अगर तुसीं याद कर लोगे ना कि पेन दे नाल तुसीं याद करके चले गए, ठीक है, कि पेन दे नाल की आएगा विद, ठीक है, तो इंक दे नाल की आएगा इन। अगर यार तुसीं ये याद करके चले गए कि तुसीं पास हो जाओगे, तुसीं सोच के देखो यार, खुद सोच के देखो, तुसीं याद करके चले गए इनू, ठीक है। बुक्स के विच तो यही हुंदा ना, या जनरली आपां नूं एवें ही सिखाया जाता है कि तुसीं पास हो जाओगे। नहीं, अगर आपां पास ही नहीं हो रहे यार तो उत्थे टाइम वेस्ट करने का की फायदा, ठीक है। हालांकि आपां नूं टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तुसीं देखोगे यार बुक्स के विच तुहानूं पढ़ के 5 मिनट से पढ़ लेंदे तुसीं, लेकिन वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा एग्जाम के विच, उस मतलब काम ही नहीं आ रहा अपने, ठीक है। मैं होर भी बहुत सारे देखे ने, ठीक है, या आप पढ़ते देखे या मैं खुद भी पढ़िया, ठीक है। आई एम नॉट डिसरिस्पैक्टिंग एनीवन, लेकिन उस तरीके का ट्रेंड चलता आ रहा कि आपको चीज़ां याद करवाई जांदियां ने, आप फिर उन्होंने क्रैम करते हैं, ठीक है। उस तरीके नाल नहीं, आप समझ के पढ़ांगे, ठीक है। तो पेन का मतलब उरे की हो जाएगा इंक, उरे आ पेन का मतलब ये टूल है कि डिवाइस है, ठीक है। चलो नैक्सट है, हुण देखो मार्कर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक तरीके नाल तुसीं समझते हो मैं की कहना चाह रहा। नैक्सट है, काइंडली फिल दिस फॉर्म ब्लैंक ब्लैक इंक, ठीक है। तो हुण देखो ब्लैक इंक उन्हें कहता है मटीरियल है, ठीक है। टेंडेंसी जनरली विद यूज़ करेंगे, ज़्यादातर बच्चे विद यूज़ करेंगे। तुसीं ये वीडियो तो देखने तो पहला इन्हों क्वेश्चन को सॉल्व करते बिना देखे वीडियो तुसीं सारे विद ही भरते, विद बाय ज़्यादातर तुसीं यही यूज़ करते, ठीक है, लेकिन ये सच नहीं है। नैक्सट, यू नीड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर ब्लैंक इंक, ठीक है। सिग्नेचर दो जेडे कि कादे चोन इंक चोन, ठीक है, या ये पता चल गया। नाउ यू नो द रीजन वाई वी आर यूजिंग इन, वाई वी आर यूजिंग विद, वाई वी आर यूजिंग बाय,
ठीक है, जब आप जिथे भी बाय यूज़ किया उस तरीके नाल। चलो हुण 2-3 क्वेश्चन होर ने, ठीक है, जो कि मैं बाय वाली क्लास दे विच तुहानूं दित्ते सीगे, ठीक है। ही पेड ब्लैंक क्रेडिट कार्ड he paid cash। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अगर थोड़े वो सॉल्व हो गया तो तुम ये भी सॉल्व कर सकते। मैं तुम्हें क्या एनालिटिक स्किल्स यूज करो, तो अगर मैं तुम्हें ये करवाया नहीं यार, तुम थोड़ा जिहा अप्रोच करो, इनू कोशिश करो, वीडियो नू पॉज करो, देखो यार, ठीक है, मैं तुम्हें करवा रहा, ठीक है, लेकिन इन्नी जल्दी कई बार नहीं भी समझ आता, ठीक है। एवरीबडी नीड्स टाइम, एवरीबडी हैज़ इट्स ओन पेस, ठीक है, हर किसी की अपनी स्पीड है जी, अपनी कैपेबिलिटी, अपना IQ है। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ, ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਟਲੀਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚੌਥਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। चलो तुसीं ट्राई किया होगा, ठीक है। ही पेड ब्लैंक। हुण तुसीं देखो कि ये जिहड़ा क्रेडिट कार्ड है ना, ठीक है, ये एक माध्यम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली, ठीक है, आप और की कह सकते हैं वाया क्रेडिट कार्ड, कह सकते हैं वाया क्रेडिट कार्ड। तो अगर वाया क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं तो की है, क्योंकि यह की है ना, और एक मीनस है, यह की एक मीनस है। अगर यह एक मीनस है, ठीक है, यह एक साधन है, तो इसी वजह नाल आप और की यूज़ कर लिया बाय, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कैश की गल करा, जो कैश है, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन देवां कि यह एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है या फिर मटीरियल है, यह तुसीं देखना है, ठीक है। कई बार स्टार्टिंग नहीं पता होंगे, लेकिन एक बार मैं तुम्हें दसूंगा, चीज़ों नाल फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। तो कैश इज मटीरियल, अगर यह मटीरियल है तो आप और एक यूज़ कर लांगे इन। समझ आ गई गल, ठीक है। जिवें मैं कहां ही पेड ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता थोड़े लिए, ठीक है। हुण ये प्रैपोजिशन फिल करनी है, तो उरे आप एक वर्ड फिल करना है, ठीक है। आप दोवें ऑप्शंस ने, पहला ऑप्शन है और एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन और एक कैश। ये लिए आह सेम ऑप्शंस ने सारे, जिथे मैं तुहानूं दस्सिया गिविंग ते, मतलब आह तरीका यूज़ किया उन्हें। अगर आह तरीका यूज़ किया तो तरीके इंट्रोड्यूस करने लिए आप आ गया बाय, ठीक है। अच्छा, की दिता उन्हें, कैश दिता या क्रेडिट कार्ड दिता। कैश दे के तुसीं बिल पे करोगे ना, हुण क्रेडिट कार्ड दे के थोड़ी ना बिल करोगे, तुसीं उत्थे रखोगे नहीं, तुसीं वापस लोगे ना, और ये तक मीडियम आ, तुसीं उहनूं यूज़ किया बस, गल समझ आ रही है, ठीक है। तो हुण आपां नूं समझ आ गया कि उरे आपां की यूज़ कर लांगे कैश। तो अगर आप कैश लिख रहे हैं ना, तो कैश एक मटीरियल है, अगर एक मटीरियल है तो इसी वजह आप और यूज़ किया है, ठीक है। तो आई होप तुहानूं ये समझ आए होंगे, ठीक है। ये रिलेटेड थोड़े जे क्वेश्चन होर ने, आपां भी फटाफट कर लेने। अगर तुहानूं किते भी कोई दिक्कत आती है, ठीक है, इस तो इलावा या होर कोई भी क्वेश्चन दे विच, तो तुसीं टैलीग्राम वाले ग्रुप पर भेज दिया करो, ठीक है। आपां उस ते फिर वीडियोज़ वगैरह बना के तुहानूं समझा सकते हैं। ठीक है, आई होप पूरे तक क्लियर होएगा, नहीं भी क्लियर है तो कर सकते हैं, ठीक है। आई एम डूइंग माई बेस्ट, नॉट एवर आई कैन। चलो ही फॉट ब्लैंक एंड एडवांस्ड राइफल, ठीक है। नेक्स्ट है ही फॉट ब्लैंक करेज। ट्राई करो एनी रैंडम प्रेपोजिशन दैट कम्स टू योर माइंड। चलो तुसी ट्राई किया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। चलो ही फॉट ब्लैंक एंड एडवांस्ड राइफल, ठीक है। हुण तुसी समझ आ रहा है कि वो लड़िया इस टूल नूं यूज़ करके, तो और आपां की यूज़ कर लिया विद, तो तुहानूं समझ आ रहा है कि उरे भी विद आएगा, ठीक है, लेकिन तुहानूं रीजन नहीं पता। लेकिन अगर तुसीं ध्यान नाल सोचोगे यार, ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है,
ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन जेड़ा यह इंस्ट्रूमेंट है ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट। इन्नी गल समझ आ गई, ठीक। तो तुसी मैं चाहना कि आई एम गिविंग यू टाइम, तुसी पहला इस चीज़ को सोचो, ठीक है, इस चीज़ को मैं थोनू टाइम दे रहा, ठीक है, तुसी अपने लैवल से सोचो कि थोनू की लगता है भी क्यों हो रहा है या किवें हो रहा है, टेक योर टाइम। ठीक है, तो आई होप तुसी रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो तुसी इस चीज़ को सोचो यार कि आपां हुण उस तो एक अगे स्टैप ते चले गए, वो बेसिक लैवल के क्वेश्चन सीगे, हुण आपां उस तो अगे दी सोचांगे, अगे दी देखांगे। अगर तुसी ये चीज़ां तरीके नाल सीखोगे ना, थोड़ी रीडिंग इंप्रूव होगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, थोड़ी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, तो तुहानूं पता लगेगा कि कित्थे बी यूज़ करना है, कित्थे वाई यूज़ करना है। बहुत जगह आपां गलत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस तुसी ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, बस यह इंस्ट्रूमेंट फिजिकली प्रेजेंट है, या फिर अपन टेंजेबल भी कहते हैं, तुसीं सुनिया होगा, ठीक है। टेंजेबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी क्लीयरली सीन और टच, जिन्होंने तुसीं टच कर सकते हो, ठीक है, यू कैन टच इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट, ठीक है, फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो जिन्होंने, तो ये आप कह सकते नॉन टेंजेबल, जिन्होंने तुसीं फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुसीं इन्हूं टच कर सकते हो, नहीं, तो उन्होंने टच नहीं ना कर सकते क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके नाल तुसीं ध्यान रखना, जिहड़ा करेज है ना, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तां ही आपां की यूज़ किया, ठीक है। मैं होर लिख सकदा, मैं लिखा ही फॉट ब्लैंक डेडिकेशन, तो ये भी क्या आएगा विद, क्योंकि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ये तो तुसीं सुनिया होगा, हैंडल ब्लैंक केयर, की आएगा, क्योंकि ये भी इंस्ट्रूमेंट है। समझ आ रही है गल? तो मतलब जो आप सीखते हैं ना कि देखो आपको कितना कितों स्टार्ट मिलनी चाहिए है, ठीक है। जो आपको कितना कितने पुश मिलता है ना, स्टार्ट मिलता है, ठीक है। अगर आप फिर काबिल ना यार तो आप खुद ही सीख लाँगे, ठीक है। तो कितना कितने एक बार थोड़ा स्टार्ट मिल गई, थोड़ा एक बार ये लेक्चर तो स्टार्ट मिल गई, ठीक है। तो मेरा मोटिव वही है, टू गिव एन इलेक्ट्रिक पुश टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो टू गिव एन इलेक्ट्रिक पुश टू योर लैंग्वेज प्रिपरेशन या फिर टू योर लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। तो थोड़ा एक बार स्टार्ट मिल गई ना, तो रिलेट करके पढ़ सकते हो उस तो बाद, ठीक है। जिवें मैं कहा ही answered all my questions with yeah by he answered all my questions with yeah by politeness, क्यों? क्योंकि ये भी इंस्ट्रूमेंट है। समझ आ रही है गल, ठीक है। पोलाइटनेस हो सकता है, ठीक है, ऑनेस्टी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके नाल किवें भी तुसीं इहनूं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किवें भी यूज़ करो। होर भी बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बस मैं थोड़ा जस्ट स्टार्टिंग दे रहा किस तरीके नाल आपां लिख सकते हैं, ठीक है। जिवें मतलब होर भी बहुत तरीके नाल तुसीं जिवें मैं एक सेंटेंस लिखदा, ठीक है, तुसीं ध्यान नाल देखियो आपां इहनूं कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं। जिवें मैं कहां ही सैड हुर्रे वी हैव won the match, ठीक है। तो जो आप ये गल कही तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे यार कि उरे की हो रहा है, यदा जो आप नरेशन बनावांगे की बनावांगे, they exclaimed blank joy that they had won the match, की आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं और जॉय ना लिखा,
अगर उरे अलास वगैरह हुंदा तो की आ जांदा, ठीक है। तो अगर कोई सरप्राइज की गल हो जाती तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने इसी वजह नाल आपां पाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप थोनू ये लैक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट वगैरह है, कोई दिक्कत है तो तुसीं जरूर कमेंट करके दसना। लास्ट एक क्वेश्चन होर पूछना है। ठीक है, ये थोड़ा होमवर्क है जी। शी शाउटेड ब्लैंक पेन, ठीक है। तो इनू आप डिस्कस करांगे नैक्सट क्लास के, ठीक है। विद का सैकेंड पार्ट आएगा। मैं तुहानूं कहा सी ना विद का एक बड़ा पार्ट आप कवर करांगे, तो जब विद का एक बड़ा पार्ट कवर किया तो विद होर भी बहुत इंटरस्टिंग है, ठीक है। तो मतलब होर भी बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ये, ठीक है, जिवें तुसीं पढ़िया होगा। चलो आप नैक्सट पढ़ांगे, ठीक है। आई एम बिजी ब्लैंक वर्क, ठीक है। ऑप्शन यही ने सेम ने, ठीक है। विद और इन तुम ट्राई करना कि उरे की आएगा। दो ऑप्शन, दो क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन ये है जी, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे कंसैप्ट्स ने विच आप जरूर सीखांगे। आई होप थोनू चीज़ां क्लीयर होणगियां, ठीक है। समा देने लिए धन्यवाद। तो चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। तो जेडे भी थोड़े होर कोई भी फ्रेंड्स पंजाब दे विच तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश दे विच कमी है उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने एक सही प्रॉपर मीडियम नहीं मिल रहा जितों सीख सकन, तो उन्होंने जरूर तुसी रिकमेंड करो कि यार इस चैनल पर वधिया तरीके नाल करवाया जा रहा है। अगर थोनू वधिया लग्या तो तुसी जरूर अपने फ्रेंड्स नू, अपने जूनियर्स नू रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।